Kunjan, are you sharing? Kunjan, can you share again? सॉरी, बुक शेयर करनी है एक। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते मई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। जय जिनेन्द्र। हाँ, दूसरा अधिकार हमारा स्टार्ट हुआ है, उसका मंगलाचरण मैं यहाँ से लेता हूँ। मिथ्या भाव अभाव जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। So far we have completed our first unit of Moksha Marga Prakashak, written by Pandit Todamal ji. So we can say that first unit is like our introduction, and Pandit ji has clarified many things to us, like why I'm reading, why I'm writing this Granth, what is the purpose, and he himself has raised many questions and answered properly. In second unit, it means he is just presenting the subject matter in very systematic matter. In second unit, the name of the second unit is Sansar Avastha Ka Sarup, nature of the mundane existence. So in the second unit, Pandit ji will tell you some technical point. Technical in the sense, the attachment of karma and jeev, since when, and is it permanent or temporary? So Pandit ji will present many examples to explain this Sansar Avastha. Last time, though we read one page of this unit, and we discussed about an example, very famous example of a physician, Vaidya. So it's a very famous and very proper example to explain this subject. कोई बता सकता है वैद्य का एग्जाम्पल हम जो पंडित जी ने लिया था वो क्या बताना चाहते? Last time we discussed about this. Yeah, please. So basically we were talking about that if you go to a physician, now physician will ask you about what. So basically we know that I have a fever, but we don't know the cause of the fever. So physician will try to diagnose like what are the causes of the fever and why you are getting fever, and there can be multiple reasons. On the similar lines, Pandit ji is saying here that in the path of moksha marg, we know that Jeev is dukhi in the sansara avastha. He's been like suffering from lot of pain right from the start, but he don't know what is the actual cause of it. He always say that yeah, I have been suffering, but I don't know the suffering causes. So Pandit is trying to bring the point that if you know that, you need to understand what exactly is making you suffer as a Jeev, and right from the start. So exactly first you should know the reason. Until you don't understand the reason, you will not be able to progress on the path of moksha marga.
So that is what you explained us in the last session. Okay, very good. Rohanji was in the class and he just given the answer in proper way. ऐसा कहा था उन्हें, हिंदी में बताता हूं मैं। इस जीव के समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। So the root cause of all miseries to this jiva is the karmic bondage. ये आप लोग जानते हैं कि it's a very common theory in educated world or in this world. First of all, if you want to get solution of anything, you must reach to the root of that problem. And if you are able to reach that problem, it means you can solve it instantly, or in near future, you can solve that. Pandit is also just giving this example, and he's clarifying in beginning of this chapter why this Jeev is just wandering in this transmigratory world. He's giving the reason. The root cause of all miseries to this Jiva is karmic bondage. इस जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म का बंधन है. Next line, what he's saying, its destruction is emancipation, and the same is the supreme welfare and the prime duty to make true effort for the same. Why this Jeev is in misery? Because of the karmic bondage. And if he just go in a proper way, and if he destroys this, it means he will get moksha. 2 लाइन में उन्होंने पूरा सब कुछ बता दिया. संसार दुख का मूल कारण कर्मों का बंधन है, और उन कर्मों के बंधन से कैसे छूटा जा सकता है कि नहीं, सॉरी, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है. तो जब ये जीव कर्मों के बंधन को छोड़ देगा, तभी मोक्ष प्राप्त कर सकता है. बहुत सिंपल से ना रीजन दिया. फिर लास्ट टाइम ने डिस्कस किया था कि कैसे जो पुराने वैद्य होते थे वो डायग्नोस करते थे. अभी भी अपने जो फिजिशियन होते हैं नॉर्मल, वो भी डायग्नोस करते हैं, लेकिन अपन नाड़ी वाले वैद्य की बात की थी लास्ट टाइम हमने, कि वो हमारा हाथ पकड़ के देखते हैं और बता देते हैं कि आपको क्या क्या बीमारी है. भारत में भी ऐसे बहुत सारे वैद्य हैं, आपके यहाँ भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे जो इस तरह से डायग्नोस करते हैं. तो ये चूंकि बीमार तो आदमी अनादिकाल से होता है और अभी भी बीमार होते ही है, तो इसलिए पंडित जी ने कोई और एग्जाम्पल नहीं लिया. उस टाइम भी मतलब डॉक्टर का इम्पोर्टेंस था और आज भी है. तो उन्होंने कहा ये डे टू डे लाइफ में जो जीव फेस करते हैं ना, अगर वो एग्जाम्पल लिया जाए तो लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा. तो पंडित जी ने क्या कहा इस एग्जाम्पल में, कि जिस तरह से वैद्य पहले तो उसका कारण जानता है कि भाई इस चीज का कारण क्या है, वो कारण जानकर उसका समाधान भी देता है. मतलब पहले कारण जानेगा और ये निर्णय कराएगा. शब्द पढ़ा था ना हमने लास्ट टाइम. पहले तो ये निर्णय करो कि तुम बीमार हो और उस बीमारी के तुम्हें ये कारण हैं. तो अगर निर्णय उसने नहीं किया कि मैं बीमार हूं, तो फिर वो बीमारी को दूर करने का उपाय क्यों करेगा. जैसे कई लोग आपको ही मिलते होंगे, मुझे ही मिलते हैं, तो वो क्या कहते हैं, सौरभ जी हम धर्म करें क्यों, हम क्यों स्वाध्याय करें, हम क्यों मंदिर जाएं जब हमें कोई दुख ही नहीं है. बोलते हमारे पास तो सब है, पैसा है, मतलब नेम फेम मनी ईच एंड एवरीथिंग आई एम हैविंग, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, मुझे क्यों मंदिर जाना चाहिए. मंदिर तो वो लोग जाते हैं, स्वाध्याय तो वो लोग करते हैं जो दुखी होते हैं. अब भाई वो व्यक्ति बीमार तो है ना, उसे कषाय की बीमारी है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है ना कि मुझे बीमारी है. तो यहाँ का पहले तो वैद्य उसे निर्णय कराता है कि तुम बीमार हो, और इतना कार्य तो वैद्य का है कि पहले वो निर्णय कराएगा और उसके बाद वो उपाय भी बताएगा. तो अगर वो मरीज उपाय करे तो ठीक हो जाएगा वो, और अगर उपाय ना करे वो, तो वो ठीक नहीं होगा. तो ये मरीज पे छोड़ दिया. मतलब पंडित जी क्या कह रहे हैं कि भाई मोक्ष मार्ग का सुगम उपदेश हमने तो दे दिया. We have just shown you the path of liberation to you. Now it is up to you whether you accept, whether you go on that or not. तो ऐसे ही वैद्य जी कह रहे हैं, ये फिजिशियन कह रहे हैं कि मैंने तो आपका पूरा डायग्नोस कर दिया,
मैंने आपको ये भी बता दिया बीमार हो और इस कारण से बीमार हो, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपकी बीमारी ऐसे दूर हो सकती है, की जा सकती है। तो लिखा है कि इतना तो वैद्य का कर्तव्य है, कि इतना वैद्य ने बता दिया, अब आगे अगर वो कुछ करे तो वो उस पर ही डिपेंड करता है, जिस पर, जो पेशेंट है उस पर। देखिए मैं आपको एग्जैक्टली शब्द बताता हूँ क्या हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। इस उपाय की उसे प्रतीति कराता है, इतना तो वैद्य का बतलाना है, तथा यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप पर प्रवर्ते, ये रोगी का कर्तव्य है। इंग्लिश में लिखा था यहाँ कि giving such advice is the duty of a physician, and if the patient adopts that means, then he can enjoy his natural state after freeing himself from the disease. This is the duty of patient. दोनों चीज बता दी कि वैद्य की ये ड्यूटी है, और फिर अपने आप को पूरी तरह से ध्यान रखना, उसको स्वस्थ करना, वो पेशेंट की ड्यूटी है। फिर यहाँ बताया कि भाई वो वैद्य कौन है और वो पेशेंट कौन है। तो आप यूं समझ लीजिए पंडित जी वैद्य हैं, या यूं समझे हमारे आचार्य वैद्य हैं, हमारे भगवान वैद्य हैं। तो अभी पंडित जी का चूंकि प्रकरण है तो हम ऐसा मानते हैं कि पंडित जी ही इज अ वैद्य, ही इज अ फिजिशियन, एंड वी हैव रीच्ड टू हिम and saying that I'm in misery. So he just telling us the root cause of our misery. तो कह रहे कर्म बंधन युक्त जीव को ये पढ़ना था अपन को, ये पढ़ते हैं यहाँ से अपन। सिमिलरली पढ़िए प्रेरित जी, आप पढ़िए। Similarly here the jeev Similarly, having here karma. the jiva, mundane being, having karmic bondage, is first being told the reason for the karmic bondage as to how he got entangled with the karmas. Then he is told about the various conditions which he undergoes. Thereby, the jiva concludes that he assuredly has such karmic bondage, and then he is further told in various ways about means of release from karmic bondage. And the physician makes him believe about the efficacy of the means. So much is the sermon of the scriptures. If this jiva makes efforts accordingly, then by freeing himself from karmic bondage, he can enjoy his natural bliss. This is duty of jiva. So Pandit Todumalji beautifully just told the duty of jiva, not the duty of jiva, but he has clearly just pointing out to us, it is your duty. Though acharyas, they have just already told the way of liberation, and they already realized, they just made you realize that you are suffering from these miseries, and this is the root cause. At last, it is your duty. It is your duty. If you just follow the path of liberation in proper way, then you can get that. So similarly, here the Jeev, mundane being, having karmic bondage, is the first being told the reason for the karmic bondage as to how he got entangled with the karmas. तो पहले उनने यहाँ रीजन बताया कि भाई पहले तो देख लो, आपको कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि ऐसे आपको कर्म बंधन हुआ, और फिर उन्होंने ये बताया कि इस कर्म बंधन से जो अवस्था होती है, देन ही टोल्ड द वेरियस कंडीशंस व्हिच ही अंडरगोस। भाई कर्म बंधन होने पर कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं। तो होती है ना, हमें क्रोध आता है, मान आता है, मोह आता है, लोभ आता है, काम आता है, जितनी संज्ञाएं होती हैं हमें, जिनको हम विकारी संज्ञाएं बोलते हैं, वे सारी विकारी संज्ञाएं होती हैं कर्म के कारण से होती हैं वो सारी विकारी संज्ञाएं। तो जैसे वहां वैद्य ने बताया था ना, अच्छा तुम्हें घबराहट होती है, हाँ 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 वैद्य जी होती है, मुझे घबराहट होती है। अच्छा तुम्हारी बॉडी पे थोड़े थोड़े रेड रेड स्पॉट आए होंगे, हाँ 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 वैद्य जी आए थे। तो ऐसे करके वेरियस रिजल्ट्स बताता है वो कि ये आपको हुआ होगा। ऐसे ही पंडित जी भी कह रहे हैं कि भाई then he told about the various conditions which he undergoes, thereby the jeev concludes that assuredly has such karmic bondage, and then he further told in the various way about the mean and release from that karmic bondage. And the physician make himself believe the efficacy of the means. उसके बाद वो उसने स्वीकार किया मुझे ये लक्षण है,
हाँ हाँ वैद्य जी मुझे हैं, ऐसे जीव ने स्वीकार किया कि हाँ हाँ मुझे आचार्य ये आपने जो लक्षण बताया ना बिल्कुल यही लक्षण है मुझे। मैं बहुत जल्दी मेरा चित्त विचलित हो जाता है। सारे धन सामग्री होने के बाद भी मुझे जो मेंटल पीस चाहिए वो नहीं मिलती है मुझे। तो ये सब है लक्षण क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के। तो उनने कहा तुम बीमार हो। भाई आप अगर ये लक्षण है तो आपको ये बीमारी है। तो क्या बीमारी है आपको? कर्म बंधन की बीमारी है। So a physician makes him believe that the efficacy of the means so much is sermon of the scriptures. This is the jeev makes efforts accordingly, then by freeing himself from karmic bondage, he can enjoy his natural bliss. This is the duty of jeev. तो इतना तो कर्तव्य किसका है? जीव का है वो, कि भाई कर्म बंधन बता दिया, कर्म बंधन को दूर करने का उपाय बता दिया और शास्त्र का उपदेश भी दे दिया कि भाई आपका ये इस प्रकार से आपका कर्म बंधन दूर होगा। अगर वो इसके बाद भी ना करे तो वो जीव की गलती है। मतलब कर्म बंधन से मुक्त अगर वो होने का उपाय ना करे, अगर सब कुछ बता देने के बाद, जैसे आगे कहेंगे पंडित जी आगे कि अब सब प्रकार से समय आ गया है। फिर पहले अधिकार में क्या कहा? पहले अधिकार में कहा कि अगर जिस तरह से जिस तरह से कोड़ी को अमृत पान कराया जाए वो ना करे, तो ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं कि भाई ये आपकी ड्यूटी है, इतना कर। ये यहाँ तक एक इस अधिकार की एक पंडित जी ने बताया सामान्य की। अब हम आगे क्या बतलाने वाले हैं, तो अब पूरे अधिकार में जो पंडित जी प्रकरण लेने वाले हैं वो बीमारी और बीमारी के निदान के बारे में बतलाने वाले हैं। बीमारी मतलब जो उन्होंने अभी स्टार्टिंग के 10-20 लाइन में बताया कि कर्म बंधन है, तो हमें नेचुरल क्वेश्चन है, ओके ये कर्म बंधन क्या है, कब से है, अनादिकाल से है ये बीमारी हमें कि नई बीमारी है, जो छूट गए हैं वो कैसे छूटे हैं। तो ऐसे करके अब नेक्स्ट जो समझा रहे हैं वो बता रहे हैं कर्म बंधन का निदान, डायग्नोसिस ऑफ द कार्मिक बॉन्डेज। आप पढ़िए, रोहन जी आप पढ़िए। तो सर जी कहाँ से पढ़ना है? डायग्नोसिस ऑफ कार्मिक बॉन्डेज। Diagnosis of karmic bondage. Now the diagnosis of karmic bondage is described. Due to karmic bondage, transmigration of soul is various alien disposition is found. One fixed state is not possible. Therefore, the state with the karmic bondage is called mundane existence, sansar. In this mundane existence, there are infinite times, infinite jeeves, dravya, soul substances. They all are having karmic bondages from eternity. It is not so that earlier the soul, jiva, was separate and the karmic matter was separate, and later on this got intermingled. How is it then? As it is Merugiri, Meru mountain, naturally existing molecules, there are infinite atoms existing from eternity in a single bonded form. From them, many atoms get separated, many new atoms get united, and thus their union and separation continues. Similarly, in the universe, the one source substance and infinite matter particles, atom, in the form of karmas, are found in bonded form from since eternity. Afterwards, many get separated, many get united, and thus their union and separation continues. Okay, so now he is just diagnosing the karmic bondage and वो ऐसा लिखा उन्होंने हिंदी में। अब हम यहाँ प्रथम आपको कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं। So now the diagnosis of karmic bondage is described. भाई ऐसा क्यों बताया कि भाई पहले ही आपने सॉल्यूशन बता दिया? आपने इसलिए बताया कि किसी को हम कोई बीमारी बताते हैं ना तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन होता है ये कि मैं इस बीमारी से कैसे छूटूंगा, मुझे इस बीमारी से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि भाई कर्म बंधन का निदान हम आपको बतलाते हैं और उस प्रकार से वो कर्म बंधन का निदान के लिए वो बहुत सारी बातें करेंगे यहाँ पंडित जी। कर्मों का नेचर बताएंगे कि भाई कैसे निर्बल जड़ कर्मों के द्वारा स्वभाव का घात हो जाता है और वो कर्म हमें सामग्री मिला देते हैं, वो कर्मों के द्वारा सामग्री चली भी जाती है।
फिर घाती अघाती कर्मों का क्या कार्य है, तो ऐसे वो बताने वाले हैं इसमें। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई पहले तो आप ये समझिए कि कर्म बंधन होने से ही जो संसार में वो परिभ्रमण पाया जाता है। Now the diagnosis of karmic bondage is described. Due to the karmic bondage, transmigration of the soul in various alien disposition is found. कर्मों के कारण से ही संसार में भ्रमण हो रहा है। वैसे देखिए, अगर हम शुद्ध निश्चय से बात करें, पारिणामिक भाव से बात करें, परम शुद्ध निश्चय से बात करें, तो सारी आत्माएं समान हैं। मतलब उनमें अगर पर्याय दृष्टि से ना देखें तो सिद्ध, निगोदिया, हम, त्रियंश, नारकी सब सेम है, किसी में कोई अंतर नहीं। बात पता है, हमारी जो पूरा पूरा डिस्कस होता है, ये द्रव्य को शुद्ध बनाने का नहीं होता है। पूरा डिस्कस जो हम समय सार पढ़े हैं, हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़े हैं, जिनवाणी में कुछ ही पढ़े, पूरा का पूरा डिस्कशन द्रव्य को शुद्ध बनाने का नहीं है। पूरा डिस्कशन पर्याय को शुद्ध बनाने का है एक्चुअली। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। क्यों कर रहा है? कर्मों के बंधन के कारण से कर रहा है। तत्वासूत्र में तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया इसका कि आबिद कुलालबत ऐसे करके एक सूत्र है, 10वें अधिकार में है ये सूत्र। तो उसमें कह रहे हैं कि भाई ये संसार में जीव कैसा डूबा रहता है। तो आप लोगों ने लौकी देखी ना? लौकी की एक बहन होती है तूमड़ी। देखिए आप लोगों ने, किसने तूमड़ी देखी क्या? क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ, मुझे पता नहीं, लेकिन वो लौकी की तुरई सिस्टर क्या? होती है। सौरभ जी, तुरई? तुरई नहीं, तुरई अलग होती है, तूमड़ी होती है। मतलब लौकी लंबी होती है और वो लौकी की जो बहन है ना तूमड़ी, वो गोल होती है। वो है लौकी होती है वो, मतलब लौकी है वो, लेकिन वो गोल होती है, उसको तूमड़ी बोलते हैं। तो मुझे इंग्लिश भी उसका नाम नहीं पता, मुझे तो हिंदी नाम पता, तो उसमें भी ऐसे ही इसको लिखा है। स्क्वाश बोलते हैं और कोई कोई मतलब रिज गार्ड या गार्ड बोलते हैं, गॉड बोलते गार्ड शायद कद्दू हैं, वद्दू को बोलते हैं GOURD। मेरे ख्याल से। हाँ, वो कद्दू को बोलते हैं। वो उदाहरण में क्यों लिया? नहीं 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 वो लोग राइट, स्क्वाश भी तो बोलते हैं, वो स्क्वाश भी से मिला अच्छा, हाँ ठीक है, वो मुझे इंग्लिश में नहीं पता क्या बोलते हैं, तो मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ जो तत्वासूत्र में दिया है। क्या कह रहे हैं वो कि साहब वो तूमड़ी जो है ना सूख जाती है वो। तो तूमड़ी जब सूख जाए ना तो पानी में डूबती नहीं है। तो अगर उसको डुबोना है तो बोले कि उस पे मिट्टी का लेप कर दो। आप बोले आप मिट्टी का लेप कर दो, उसको सुखा दो, पानी में डुबो दो, डूब जाएगी वो। लेकिन जैसे जैसे उसमें से मिट्टी हटती जाएगी ना, वो अपनी स्वभावगत योग्यता से ऊपर आती जाएगी। तो उसमें वो ये बताया कि भाई वो जो मिट्टी लगी है उसमें, वो मिट्टी हटेगी, तुमड़ी ऊपर आ जाएगी। फिर उसमें एक अग्नि शिखा का उदाहरण भी दिया कि जिस तरह से अग्नि शिखा होती है वो नेचुरली ऊपर जाती है। फिर एक कॉटन का बीज होता है, कॉटन का फूल होता है, मतलब हमारे मालवा में, यहाँ इंदौर के आसपास बहुत उगता है वो। तो वो कैसा होता है कि जब सूख जाता ना वो, तो सूख के वो जो फूल होता है वो अपने आप फूट जाता है। तो जब फूटता है ना तो उसके बीज नेचुरली ऊपर जाते हैं। मतलब वैसे तो ग्रेविटेशन के कारण नीचे जाना चाहिए, लेकिन वो जब फूटता नेचुरली ऊपर जाता है। तो ऐसे ही उसमें तो ये बताया है कि इस आत्मा की स्वाभाविक अवस्था जो है ना वो ऊपर जाना है। तो बोले संसार में क्यों है ये? संसार में इसलिए है क्योंकि इसके साथ कर्म बंधन की मिट्टी लगी हुई है। कर्म बंधन की मिट्टी हट जाए तो ये फिर नेचुरल स्टेट में आ जाए अपनी, और नेचुरल स्टेट में जैसे ही आएगी तो ये हल्की हो गई, कर्मों से रहित हो गई। जब कर्मों से रहित हुई तो सीधी जाके सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाएगी, और उसके अग्रभाग पे जाके विराजमान होगी, क्योंकि आलोक में तो फिर वो अधर्मास्तिका धर्मास्तिका है ही नहीं। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि संसार में भटकने का जो कारण है, वो संसार में भटकने का जो कारण है वो कर्म है, और उसी का नाम संसार है। तो पूरा का पूरा प्रयास, पूरी चर्चाएं, जो भी प्रयास है, जो भी चर्चाएं हैं, जो भी पुरुषार्थ है, वॉट एवर वी जस्ट वॉन्ट टू डू फॉर अ लिबरेशन। तो लिबरेशन इट डजंट मीन समवन हैज कैप्चर्ड, समवन हैज हाईजैक्ड अस, बट बंधन का मतलब यह है कि हम अनादि काल से उन कर्मों के, कर्म हमारे साथ हैं, उसे बोलते हैं कार्माण शरीर। अपन पढ़ते हैं ना, कार्माण शरीर, तेजस शरीर। तो ये कार्माण शरीर जो है ना, ये बंधा हुआ है हमारे साथ अनादिकाल से।
अब इस संसार में अनंतानंत जीव द्रव्य हैं और वो अनादि काल से ही ऐसे हैं। क्या कहा? Therefore, the state which karmic bondage is called mundane existence, sansar. In this mundane existence, there are infinite time, infinite jeev dravya, soul substances. संसार में जितने द्रव्य हैं, द्रव्य नहीं सॉरी, संसार में जितने जीव द्रव्य हैं, सारे के सारे जीव कर्मों से बंधे हुए हैं। यहाँ तक कि अरिहंत को भी जब तक 4 अघातीय कर्मों का सद्भाव रहता है, तो वो भी संसार में रहते हैं। यद्यपि वो वीतरागी और पूर्णता सर्वज्ञ हो गए हैं, लेकिन 4 घातीय कर्मों के नाश हो जाने से सर्वज्ञ हो गए हैं वो, और अघातीय कर्मों के रहने के कारण से वो संसार में रहते हैं। सो इन दिस वर्ल्ड ऑल इनफाइनाइट जीव दे आर हैविंग कार्मिक बॉन्डेज। संसार में ऐसा कोई नहीं हो सकता जो कि कर्म से रहित हो। अगर ऐसा कोई कहे कि मैं सर्वज्ञ हो गया, तो वो झूठ कहता है, ऐसा असंभव है। अरिहंत अवस्था एक है, वीतरागी 2 अवस्थाएं हैं केवल बस। सर्वज्ञता की अपेक्षा संपूर्ण वीतरागता की 2 अवस्थाएं हैं, एक अरिहंत अवस्था, एक सिद्ध अवस्था। अरिहंत अवस्था जब होती है तो अरिहंत ऐसा कहते ही नहीं कि मैं सर्वज्ञ हो गया, क्योंकि वो यद्यपि कहते हम उनको ऐसा है कि वो संसार में है, लेकिन वो संसार में रहते हुए भी उससे रहित हैं। और एक सिद्ध है, तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं सर्वज्ञ हो गया। तो यहाँ ये कह रहे हैं संसार में जितने जीव हैं, वे जीव सारे के सारे कर्म बंधन से सहित हैं। और क्या कह रहे हैं आगे की बात, ये रिमार्केबल है। It is not so that earlier the soul was separate and karmic matter was separate, and later on these got intermingled. ये उन्होंने बढ़िया बात कही। बोले आप ऐसा मत सोचना कि कोई भी जीव पहले कर्मों से रहित था और बाद में फिर कर्मों से बंध गया। तो रूल सुन लीजिए आप लोग, एक बार कोई जीव कर्मों से रहित हो जाए, संपूर्ण कर्मों से रहित हो जाए, 4 घातीय कर्मों से रहित हो जाए, वो कर्मों से रहित एक बार हो गया, फिर कभी भी अनंत काल में कभी भी दोबारा कर्मों से नहीं बंध सकता। तो यहाँ एन पंडित जी ने एक दूर की, मतलब हमें एक ये बता रहे हैं वो, एक तो ऐसा मत समझिए आप कि पहले हम कर्मों से रहित थे और बाद में हम कर्मों से बंधे। जब अपन टोडरमल जी के मतलब उनके नॉलेज की स्टडी करते हैं, स्पेशली मैंने बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, हम जब 7वां अधिकार पढ़ेंगे या उनकी सम्यक ज्ञान चंद्रिका पढ़ो, आपको पता है टोडरमल जी ना मनोवैज्ञानिकता के बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति थे। मतलब वो लोगों के मन की बात को समझते थे। ये दूसरा अधिकार कर्म बंधन की अवस्था बताया, तो ऐसे अगर कोई कर्म बंधन की अवस्थाओं को अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सार कर्म कांड में पढ़े, दूसरे करणानुक ग्रंथ में पढ़े, पता बोर हो जाए, वो बंद कर दे। वो कहे भैया मैं इतना नहीं समझ सकता, इसमें जो गणित हुआ है मुझे इसका कोई काम नहीं है। पंडित जी ने प्रॉब्लम समझी और उनने क्या बताया, उसमें से निचोड़ निकाला। उनने क्या कहा कि भैया आप अनादि काल से कर्मों से बंधे हुए हो, ये इस ग्रंथ का कहना है। मतलब उन्हें पूरे ग्रंथ का सार, ये अभी 20, 30, 40 पन्ने आएंगे इसमें दूसरे अधिकार में, पूरे कर्म बंधन के जितने ग्रंथ थे उनका निचोड़ यहाँ लिख दिया। तो इसलिए पहले अधिकार में उन्होंने क्लैरिफाई भी किया था ना कि व्हाई आई एम राइटिंग दिस ग्रंथ, व्हाई आई एम राइटिंग दिस देश भाषामयी ग्रंथ। तो उन्होंने कहा भाई कि लोग संस्कृत नहीं जानते, लोग प्राकृत नहीं जानते, and they don't know the grammar, अलंकार, रस, छंद, etc. That's why I'm writing this. तो उन्होंने ये बराबर बता दिया इस ग्रंथ में। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि पहले जीव न्यारा था और कर्म न्यारे थे और बाद में इनका संयोग हुआ। अनादि काल से ही ये जीव और कर्म साथ में थे। एग्जाम्पल दिया उन्होंने, मेरू का एग्जाम्पल दिया है। How it is then? As in the Meru mountain, naturally existing molecules, there are infinite atoms existing from eternity in a single bonded form. From then many atoms get separated, many new atoms get united, and thus their union and separation continues.
Similarly, in this universe, the one soul substance and infinite matter, atoms, particles, in the form of karmas are found embodied from since eternity. Afterwards, many get separated, many get united, and thus their union and separation continues. उन्होंने बता दिया कि भाई आपको ऐसे समझ में ना आया हो, तो फिर पंडित जी ने मेरू का एग्जाम्पल दिया. कोई ऐसा कह सकता है कि मेरू का एग्जाम्पल क्यों दिया? We have no one has seen Meru, so the example can be taken like Himalaya. जैसे हिमालय है तो हिमालय क्या अनादिकाल से नहीं है. मेरू का एग्जाम्पल इसलिए लिया पंडित जी ने कि मेरू जो सुमेरु पर्वत है, वो सुमेरु पर्वत अनादिकाल से जैसा है वैसा ही है. ऐसा नहीं था कि पहले वो सुमेरु पर्वत नहीं था और बाद में बना. तो प्रोसेस बता रहे हैं कि जैसे मेरू पर्वत, सुमेरु पर्वत अनादिकाल से है. अब एक रूल और है कि साहब पर्याय बदलती है. तो आपने कहा साहब जिस वस्तु का उत्पाद हुआ उसका व्यय भी होता है, तो फिर मेरू तो व्यय हुआ ही नहीं उसका. तो कह रहे हैं हाँ ऐसा होता है उनके साथ कि मेरू के साथ जो कर्म के परमाणु, वो सॉरी, जो रजकण बंधे हुए हैं, वो अपनी अवस्था पाकर झड़ जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, फिर वो झड़ जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं. लेकिन मेरू पर्वत जो रहता है वो अनादिकाल से वैसा ही है. ऐसे ही आत्मा के साथ कैसा है, हमारी आत्मा के साथ, कि हम थे अनादिकाल से. तो साहब हमें परिवर्तन क्या हुआ? हुआ ना हमें परिवर्तन. कर्म आए हमारे साथ और अपनी अवस्था को मतलब अपने आबादा काल पूरा किया उनने, अपना टाइम पूरा किया और चले गए. फिर आए, फिर उनने अपना टाइम पूरा किया और फिर चले गए. लेकिन हम संसार से नहीं छूटे, मतलब हमारा बैलेंस वो ही रहा. जैसे अपन कहते हैं ना कि हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट में एक बैलेंस शीट देखते हैं, तो हमारा डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर होना चाहिए. तो उसमें हम देखते हैं भाई हमारी 1 करोड़ की इनकम है, 1 करोड़ का एक्सपेंस, ठीक है भाई, दोनों बराबर हो गए. या फिर 50 लाख का एक्सपेंस है, 1 करोड़ की इनकम है, 50 लाख रिजर्व में आ गए, तो अपन कहते हैं बैलेंस शीट बैलेंस हो गया पूरा. अगर कहीं भी फिगर में डिफरेंस आया मतलब वो प्रॉपर नहीं है. ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि वो कर्म के परमाणु जाएंगे और दूसरे आ जाएंगे. मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कहो साहब मेरा तो मोहिनी कर्म पूरी तरह से चला गया, मेहनत मैंने बहुत की, अब मैंने ज्ञानावर्णी चला गया, अब मेरा दर्शनावर्णी चला गया. ऐसा नहीं होगा. जाएंगे तो 4 घातीय साथ में जाएंगे. तो सुमेरु पर्वत का एग्जाम्पल लिया और बढ़िया एग्जाम्पल है. तो कि जैसे सुमेरु पर्वत है और उससे अनंत पुद्गल परमाणु बंधते हैं, छूटते हैं, इसी तरह से संसार में जीव द्रव्य है वो उससे कर्म बंधते हैं और छूटते हैं. इस प्रकार मिलना बिछुड़ना चलता रहता है. मतलब मिलना बिछुड़ना जो हमारे संयोगों का भी है ना. अपन लोग देखो अब मैच्योर हो गए, पर लोग मैच्योर हो गए इन द सेंस कि हम सब लोगों ने अपनी लाइफ के बहुत बहुत सारा टाइम हमने स्पेंड कर दिया, तो हमें एक्सपीरियंस हो गया. जो 20 साल में हमने संसार देखा था, अब हम 37-40 साल में अब जो संसार देख रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को भी बहुत फर्क नजर आने लगा. बहुत डिफरेंट व्यू हो गया आपको संसार को देखने का. तो कैसा हो गया कि हमने जिन लोगों को बचपन में देखा था, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. सो व्हेन आई वाज इन माय विलेज चंदेरी, आई जस्ट टोल्ड यू दैट माय बर्थ प्लेस इज चंदेरी. So when I still just clearly remember that at the age of 10 or 12 years or 14 years, many people, they were young, quite young, but when I just meet them, they're not young, but they are older. And at that age, I met many people, they were alive that time, but they are not alive now. They have gone. तो मैं जब उन लोगों को देखता हूँ तो मैं अंकल आप तो बूढ़े लगने लगे. हाँ बेटे, तुमने मुझे आज से 25 साल पहले देखा था, तब मैं 40 साल का था. आज 25 साल और ऐड कर लो उसमें, मैं तो बूढ़ा तो होऊंगा ना. तो हम लोगों ने भी अपनी जो लाइफ देख रहे हैं, मैनी पीपल आर कमिंग. मतलब हम कई सारे, जैसे अब अपन लोग हैं, हम सब लोग जब अपनी क्लास स्टार्ट हुई थी तो हम सब लोग बैचलर थे.
मतलब मेरी शादी हुई 1 साल हुआ था और आप सब लोग मैक्सिमम लोग बैचलर थे, सारे बैचलर थे मैक्सिमम क्या। अब भाई मेरी शादी हुई, आप लोग की शादी हुई, हमारे निमित्त से नए जीव ने जन्म लिया, ये मिलना हुआ। कई सारे लोग हमारे जीवन से चले गए अपनी आयु पूरी करके, ये बिछुड़ना हुआ। और अनादिकाल से संसार अपन देखें ना तो ऐसे ही चल रहा है रिश्तों में। नए लोग जन्म लेते हैं, वो संयोग हुआ, पुराने लोग चले जाते हैं, वो वियोग हुआ। ये संसार का नेचर है। पुराने लोगों का जाना वियोग, नए लोगों का आना संयोग। अगर ऐसा ना हो तो संसार ही ना चले। हैं? वो कहा है ना कि आपको अगर बहुत लंबी आयु की इच्छा है तो फिर आप जैन धर्म के या वस्तु व्यवस्था के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। सो you do not know the rule of nature, because what you are just wish for yourself. I must live long. How long? 100 years, 1000 years, 1000 years. It is not possible. संसार का स्वरूप क्या है? It is the nature of this संसार। जैसे हमने हमारे माता पिता के संयोग से हमने जन्म लिया, मतलब हमारा उत्पाद हुआ, और उनकी पुरानी पीढ़ी, उनके पुराने मिलने वाले चले गए। आज हम बड़े हो गए, आज हमारे सामने कई लोग जा रहे हैं, कल हम बूढ़े होंगे। तो इस तरह से वो ये बताना चाहते पंडित जी कि मिलना बिछुड़ना होता रहता है, और ये जो मिलना बिछुड़ना होता है जिसका भी, ये सब कर्म के संयोग से ही होता है। किसी का मिलना, किसी का बिछुड़ना, मतलब अभी तो और डिटेल आएगा कि उस स्थान में रहने पे उसको अनुकूलता का वेदन हो या प्रतिकूलता का वेदन हो, वो सारी अवस्था। अपन सुनते ना कि साहब उनको धन आया हो, उनको पुण्य का उदय है, तो अपन का ऐसे कैसे हो सकता है कि पुण्य का उदय है तो धन कैसे आ जाता है? तो वो भी पंडित जी बताएंगे कि निर्बल जड़ कर्मों के द्वारा बाह्य सामग्री का मिलना कैसे होता है। तो यहाँ वो इतना ही कहना चाहते हैं कि पहले तो आप ये क्लैरिफाई करो, मतलब ये समझ लो कि एक तो आपको कर्म बंधन अनादिकाल से है। आप ये समझने की भूल मत कीजिए कि मुझे कर्म का बंधन पहले नहीं था और अब मुझे कर्म का बंधन है। पता है, ये समझने से, हम जब ये समझेंगे ना तो हमारा सिद्धांत बड़ा पक्का होने वाला है। क्या होने वाला है कि कोई कुछ भी कहे, अरे हम आपको मुक्त करा देंगे, तो वो आप कहेंगे आप मुक्त नहीं करा पाएंगे हमें। हमने पढ़ लिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि हम अनादिकाल से कर्म के बंधन सहित हैं और हम अपनी बीमारी पहचान गए हैं, और वो बीमारी पहचान के हमें उसका इलाज कैसे करना है वो भी उनने बता दिया है हमें। अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो इस भाव में नहीं तो अगले में, अगले में नहीं तो और अगले में, लेकिन अब मैं अनंत काल तक संसार में नहीं रहूंगा। तो कोई मुझे मुक्ति नहीं दे सकता। आप भले ही मुझे आशीर्वाद दें, कुछ भी दें, आप मुझे मुक्ति नहीं दे सकते। तो ये एक सिस्टम बता रहे हैं पंडित जी कि साहब जो कर्म है वो अनादिकाल से आपके साथ हैं, और ऐसा नहीं था कि आप कर्मों के साथ नहीं। अब क्वेश्चन हो गया इसमें किसी को कि कैसे अनादि से कैसे हैं, समझ नहीं आया मुझे। भाई यहाँ तो आपने कहा कि वस्तु का उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, और यहाँ आपने कह दिया कि साहब कर्म अनादिकाल से हैं। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ में कर्मों के अनादिपने की सिद्धि कर रहे हैं, एस्टेब्लिशिंग इटर्निटी ऑफ द कार्मिक बॉन्डेज। और चलिए एक ये पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। पढ़िए आदर्श जी, आप पढ़िए। कहाँ establishing? हाँ ये पढ़ना, हाँ, एस्टेब्लिशिंग इटर्निटी ऑफ द Sure. कार्मिक बॉन्डेज। Sure. Here arises the question as to how karmas are eternal, because matter particles, atoms, turn into karmic matter owing to the instrumental cause nimitta of attachment, rag. Answer: attributing instrumentality is possible only when there is a new modification. There is no role of nimitta in beginningless state. As the bondage of fresh matter particles
occurs only due to difference in the degrees of smoothness, roughness. But in the molecules of mountain Merugiri, etc., the bondage of matter particles is from beginningless time. So what is the purpose of nimitta there? Similarly, changing of fresh matter particles into karmic matter results only due to attachment, dispositions of the soul. But the matter particles which are already existing in the form of karmic matter from beginningless time, what is the purpose of nimitta there? Moreover, if the beginningless state also nimitta is accepted, then beginningless is not established. Hence, the bondage of karmic matter is to be accepted from beginningless time. In Tattvartha Pradipika, commentary of Pravachan Sar Shastra, there is a Samanya Neyadhikar. Therein, it is stated that the associating cause of attachment is karmic matter, dravya karma, and the associating cause of karmic matter is attachment. There a question is raised that in believing so the interdependence fault, Ittaratrayashray dosh arises. That is, that depends on it and it depends on that. There is no stoppage anywhere. There the following reply is given. हाँ, ये यहाँ तक समझते हैं हम। देखिए, अब इसमें कर्मों के अनादिपने की सिद्धि पंडित जी बता रहे हैं कि भाई क्वेश्चन किया उसने कि आपने कहा कि कर्म अनादि से हैं, तो फिर बोले कारण कार्य का सिद्धांत तो भंग हो जाएगा ना। आपने कहा ना कि कोई कार्य हुआ है तो कोई ना कोई कारण अवश्य रहेगा, वही तो सही है। अगर कारण हुआ है तो कोई ना कोई कार्य तो अवश्य रहेगा। तो यहाँ कहा कि भाई यहाँ एक प्रश्न है, प्रश्न खुद नहीं उठाया या आपको हो सकता है ऐसा उन्होंने बोला। Here arises the question as to how karmas are eternal, because matter particles, atoms, turn into the karmic matter owing to instrumental cause of attachment, etc. कि भाई वो कह रहे हैं कि जो पुद्गल परमाणु जो होते हैं ना, वो रागादि के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। तो अनादि कर्म रूप कैसे हैं? ये क्या बता रहे हैं, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। कि क्या होता है कि पूरी संसार में ना कार्माण वर्गणाएं भरी हुई हैं। कार्माण वर्गणाएं मतलब द ऑटम्स ऑफ कर्म, उसको बोलते हैं कार्माण वर्गणाएं। वो भरी हुई है संसार में, तो वो प्लेन रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल है। लेकिन जो जो जीव जैसे जैसे भाव करता है, वो वर्गणाएं मतलब वो ऑटम्स उस आत्मा के साथ वैसे चिपक के ना वैसे नेचर को ग्रहण कर लेते हैं। मतलब हमारे भावों के निमित्त से जो कॉमन कर्म के परमाणु थे, जिनमें कोई पावर नहीं थी, वो परमाणु हमारे भावों के निमित्त से बंध कर फिर अलग अलग जीव को अलग अलग सुख या दुख वो देते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि साहब आपने हमने तो ये पढ़ा है कि रागादिक के निमित्त से कर्म बंधता है, मतलब जो कर्म के परमाणु बंधते हैं, कर्म के जो एटम्स अटैच होते हैं हमारे साथ, तो उसमें रागादि का निमित्त होता है। और आप तो कह रहे हो साहब ये तो अनादि से हैं, तो कैसे है ये? भाई जहां एक तरफ पूरे जिनागम में एक सिद्धांत ये है कि कर्म के तो हमारे राग, द्वेष, मोह, लोभ, तीव्र कषाय, मंद कषाय के कारण से हमें कर्मों का बंधन होता है। वहीं दूसरी ओर आपने कह दिया कि साहब ये कर्म तो अनादि से हैं, तो हम कैसे माने कि अनादि से हैं? ये तो दिख रहा है ना हमें बंधन होते हुए। तो उसका समाधान पंडित जी ने कहा है, आंसर, attributing instrumentally is possible only when there is new modification. There is no role of nimitt is beginningless state. अब वो कह रहे हैं कि साहब तुमने सही कहा, कारण कार्य का सिद्धांत तो नया कोई कार्य होना उसमें हम लगा सकते हैं कि साहब आपके भावों के निमित्त से आपको कर्मों का बंधन हुआ, तो कोई नया काम हो तो हम लगाएंगे कि हमारे भावों के निमित्त से कर्मों का बंधन हुआ। लेकिन चूंकि ये काम अनादिकाल से है,
अनादिकाल से मतलब इसकी कोई बिगिनिंग नहीं है। जैसे आप लोग साइंस में पढ़ते हैं ना, मैंने वही पढ़ा, आप लोगों ने वही पढ़ा कि भाई पृथ्वी जो है वो पहले आग का गोला थी, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये कूल हुई, फिर एक हिम युग आया, फिर जीव पैदा हुए, ऐसे करके उनकी थियरी है। और हमारा जनागम बोलता है कि अनादि से है। तो वो लोग बोलते हैं कि कोई ये पृथ्वी के जो जीव है ना, ये कार्य हैं, और इसका कारण क्या रहा होगा, तो वो अलग अलग कारण बताते हैं। अब जनागम बोलता है हमारा कि ये तो अनादि से है, ये संसार जो है ना, कब से है? ये संसार अनादि से है। ये तो इसकी कभी स्टार्टिंग हुई नहीं। अनादि का मतलब ही यही होता है, अनआदि। अनआदि इट मीन्स एंडलेस, वो कभी स्टार्ट नहीं हुआ वो। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं इफ आई जस्ट स्टार्ट अ न्यू वर्क, फ्रेश वर्क, then you can say that there must be any nimitta for execute this work. But there is no beginning of this karmic bondage avastha. And if there is no bondage, if there is no beginning of this karmic bondage, then how can you tell that there must be a reason for this karmic bondage? और ये अनादि कैसे हो सकते हैं? तो ये एकदम क्लियर आप लोग समझ लेना, बड़ा काम का टॉपिक है हमारा ये कर्म बंधन का वाला। कि हम कब से संसार में हैं, तो आप लोग सब समझ लीजिए अनादिकाल से हैं। कर्मों का बंधन कब से है? अनादिकाल से है। किसने हमें कर्मों का बंधन बांधा? किसी ने नहीं बांधा, अपने आप ही बंधा। अपने आप के लिए कितना अच्छा उदाहरण दिया, देखिए तत्वा श्लोक वार्तिक है, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक की टीका लिखी आचार्य विद्यानंद जी ने। तो उसमें क्या उदाहरण दे रहे हैं पता है? नेचर का, मतलब वस्तु की व्यवस्था का। वो ऐसे कह रहे हैं, जिस तरह से स्त्री के गर्भ में बालक 9 माह रहकर बाहर आता है, जिस तरह से गाय का या भैंस का बछड़ा 11 माह में उत्पन्न होता है, मुर्गी का बच्चा मतलब 21 दिन में वो अंडा देती है, और उदाहरण लिए, इसी तरह से ये जो व्यवस्था है वो स्वतः है। बोले उसे किसने बनाया? भाई स्त्री के गर्भ में 9 माह बालक बालिका रहेंगे, ये किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। भैंस को 11 महीने में ही उसको बच्चा होगा, वो किसने बनाया? बोले किसी ने नहीं बनाया। तो ऐसे ही ये जो कार्मिक बॉन्डेज है, ये कब से है? अनादिकाल से है। क्योंकि 5वें अधिकार में पंडित जी प्रूफ करने वाले हैं कि कोई सृष्टि का कर्ता नहीं है, तो अभी उसकी चर्चा करना कोई प्रसंग प्राप्त भी नहीं है। लेकिन हम यहाँ ये समझें कि ये जो व्यवस्था चल रही है ना, तो अपने दिमाग में हम रखें कि इट इज ऑटोमाइज व्यवस्था। नो वन इज जस्ट अ पर्सन, नो देयर इज नो पर्सन हु इज मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स, कि ये कर्म अनादि से हैं, इसके कर्मों से छुड़ाना है, इसको कर्म देना है, इत्यादि जो अवस्थाएं हैं, ये किसी के द्वारा की हुई नहीं है। तो पंडित जी बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि the attributing of instrumentally is possible only when there is a new modification. There is no role of nimitt is beginning less state. As the bondage of fresh matter particles occurs only due to the degree of smoothness, roughness, but in Moluccas mountain, Merugiri, etc. The bondage of the matter particles is from beginning time, so that what is the purpose of nimitt there? अब उन्होंने कहा है कि साहब इसमें निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं। मतलब यहाँ आप कहें कि साहब किसके निमित्त से ये हुआ है हमें कर्मों का बंधन, तो बोल रहे हैं नहीं नहीं, यहाँ कोई निमित्त का प्रयोजन नहीं है। ये जो है ना, ये तो अनादिकाल से अवस्था है। तो आप निमित्त का प्रयोजन वहां बोल सकते हैं जहां कोई नया काम हो। जहां नया काम नहीं है, तो फिर उन्होंने मेरू पर्वत का उदाहरण लिया, फिर से मेरू पर्वत लिया, आगे सोने का भी उदाहरण लेंगे, मतलब नेक्स्ट पैराग्राफ में सोने का भी उदाहरण लेंगे, तो वो उससे आपको एकदम क्लैरिफाई होगा। तो अभी मेरू का बोल रहे हैं कि मेरू में तो अनादिकाल से जैसा है वैसा ही है, वहां निमित्त का क्या प्रयोजन? अनादि में निमित्त का क्या प्रयोजन? अनादि में निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं है। तो तुम जो बोल रहे हो ना कि कर्मों का जो बंधन होता है, वो कर्मों का बंधन भावों से होता है, फिर आप क्यों उसको अनादिकाल का बोल रहे हो? तो पंडित जी कह रहे हैं नया काम होता तो हम बोलते कि उसमें निमित्त है, लेकिन चूंकि इसका नया काम नहीं है ना, ये तो अनादि से है। और अनादि मतलब कब से? अनादि का तो मतलब ही यही होता है
अनंत काल से इसको कभी ऐसा नहीं था कि कभी कर्मों से रहित था और बाद में बधा। तो आगे वो सोने का उदाहरण देंगे, सोना, किट्टिक, दूध और पानी का। तो ऐसा उदाहरण वो देने वाले, तिल, तेल का। तो इसी तरह से अब वो कह रहे हैं कि साहब मेरू जो पर्वत के जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो उनकी कोई बिगनिंग नहीं है, वो तो अनादि काल से जैसे थे वैसे ही हैं, वो कोई बंधे हुए नहीं है वो किसी से, मतलब अब नए बंधे हुए नहीं है, वो अनादि काल से जैसे थे वैसे हैं, इसलिए वहां निमित्त का कोई कोई प्रयोजन नहीं है। सिमिलरली द चेंजिंग ऑफ फ्रेश मैटर पार्टिकल्स इन द कार्मिक मैटर रिजल्ट्स ओनली ड्यू टू द attachment, etc., disposition of the soul, but the matter particles which are already existing in the form of karmic matter from beginning time. What is the purpose of nimitta there? बोले जो अनादि काल से कर्म है उनमें क्या, उनमें हम क्या निमित्त की बात करें? Moreover, if in the beginning state also nimitta accepted, then beginningless is not established. बोले चलो ठीक है, हमने एक बार मान भी लिया कि हमारे परिणामों के निमित्त से कर्म बंधे वो, तो फिर वो अनादि नहीं ठहरेंगे। वो तो उनका स्टार्ट हो गया ना, वो तो आपने कहा हमारे परिणामों से बंधे वो तो वर्तमान में, तो बोले वो उसका स्टार्ट हो गया, बोले वो उसको हम बिगिनिंग नहीं बोलेंगे कि अनादि काल से है ये। तो ऐसे इसमें पंडित जी ये लॉजिक दे रहे हैं। और चूंकि ये दूसरा अधिकार कोई, पंडित जी ने कर्मों की चर्चा अवश्य कर रहे हैं लेकिन बहुत टेक्निकली कोई समझाने वाले नहीं है। वो उनने जितना कर्णानुयोग पढ़ा था कर्मों से संबंधित, वो यहाँ बहुत सरल शब्दों में आध्यात्मिक बात को लेकर यहाँ समझा रहे हैं पूरा मैटर। तो चूंकि उनने कह रखा है कि मैं इस ग्रंथ को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि लोगों को अध्यात्म की गहरी बातें भी सरलता से समझ में आ जाएं, तो वो कर रहे हैं यहाँ कि जो हम टेक्निकली बड़े-बड़े ग्रंथों में पढ़ते हैं कि कर्म अनादि से हैं और उनकी इतनी प्रकृतियां हैं, इतने समय में इतने कर्म बंधते हैं, छूटते हैं, तो बोले आपके पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप में इतनी बुद्धि नहीं तो भी कोई बात नहीं, आप ये पढ़ लो, मैं पूरा सार यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो इस तरह से अभी 2 एग्जाम्पल पंडित जी के हमने पढ़े, एक फिजिशियन अर्थात वैद्य का, एक मेरुगिरी का। अब और ऐसे एग्जाम्पल पंडित जी देते जाएंगे तो विषय बहुत क्लियर होगा हमें। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। अब अगली बार हम इतरेतराश्रय दोष समझेंगे, बहुत छोटा सा है, कोई बड़ा नहीं है। और इसने कहा है कि साहब इस तरह तो ये दोष लगेगा, इतरेतराश्रय दोष लगेगा। तो फिर पंडित जी क्लैरिफाई करेंगे, नहीं भैया ये इसमें दोष नहीं लगने वाला है। और फिर वो 2 एग्जाम्पल और देंगे, 3 एग्जाम्पल और देंगे, सोने का, दूध का, तिल का, ये सारे एग्जाम्पल वो देने वाले हैं। तो इस तरह से हमारी क्लास में हमने आज दूसरे अधिकार में जो संसार अवस्था का स्वरूप पंडित जी ने कहा है और उन्हें कारण भी बताया कि व्हाई वी आर सफरिंग इन दिस संसार। और फिर उन्होंने कहा है कि कर्मों के कारण से आप संसार में हैं, तो वो कर्मों का थोड़ा सा आपको नेचर बता रहे हैं। और कर्मों का नेचर बता रहे हैं डजंट मीन ही इज टॉकिंग अबाउट थर्ड पार्टी, ही इज टॉकिंग टू पर्सन, इट मीन्स पंडित जी इज टॉकिंग टू मी, Pandit is personally talking to you because we all are just with the bodies of karma. So think that Pandit ji is personally talking to me and he is stating to me personally. Then we will take it seriously. So it is not the thing which is common for all. It is the thing which is personalized. So Pandit ji इसको व्यक्तिगत बता रहे हैं कि आप अनादिकाल से कर्मों सहित हैं और वही आपके दुख का कारण है। तो वो ऐसा पूछ रहे हैं हमसे, आपने स्वीकार किया कि नहीं आपको रोग है? मतलब उन्होंने कहा बस अब उसने तो स्वीकार कर लिया जो पढ़ रहा है, तो आपने स्वीकार किया कि नहीं आपको रोग है? और हम समझ लें ऐसे ही कि आप लोग बताइए हमें स्वीकार हुआ कि नहीं हमें रोग है कि नहीं, कर्मों का रोग है कि नहीं? है सौरभ जी? है तो ठीक है। अब है तो फिर पंडित जी हमें उपाय भी बता रहे हैं, तो वो उपाय हम ध्यान से सुने कि वो रोग का निदान कैसे होगा। और इस तरह से हमारी आज की क्लास हुई और अब हम अगली बार मिलते हैं। हाँ, प्रणीत जी आपकी यात्रा बढ़िया रही? यात्रा करके आए थे आप? यात्रा करने गए थे?
हाँ, मैं ऑफिस के काम से गया था। तो बस अच्छी तरह हो गया सब कुछ। एक हफ्ते के लिए गया था। हाँ, बढ़िया। लास्ट टाइम you was not in the class. हाँ, वो क्या था, मैं बहुत लेट आया था। वो शनिवार हम्म। रात को, फिर तो नहीं, सुबह में नहीं ज्वाइन कर पाया फिर मैं। चलिए, बढ़िया। हाँ। ओके, नेक्स्ट संडे मिलते हैं हम लोग। जिनमानी से लेते हैं। निज में बताई यहाँ तो उपकार है, उसके लिए जनवारी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।